ठीक, आराम से आराम से। इंडियन पॉलिटी का ये फर्स्ट क्लास है आप लोग का। तो जैसे कि नॉर्मली आप लोग भी जान, बिकॉज आप में से बहुत कोई इंडियन पॉलिटी पहले भी क्लासेस किए होंगे, कहीं ना कहीं बुक से पढ़े होंगे। तो नॉर्मली पॉलिटी मतलब ही आपका ज़्यादातर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन लो आमार गोटेखिनि डिस्कशन, गोटेखिनि माने मोस्ट ऑफ द डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, पार्ट, शिड्यूल, এইকেইটালৈ ডিছকাশ্যন হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰত কিবা আৰু এনেকৈ আমাৰ টপিক আছে নেকি পলিটি, যিটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ বাহিৰত টপিক? আৰু মই অলপ আগতে ষ্টেটমেণ্ট এটা দিলোঁ যে ইণ্ডিয়ান পলিটি পঢ়া মানে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনলৈ ডিছকাশ্যন কৰা। বাট ইজ দেয়াৰ এনি আদাৰ টপিক এপাৰ্ট ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, যিটো বাৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিত আমি পঢ়োঁ আৰু পঢ়া হয় বাৰু? नीति आयोग, इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नीति आयोग जैसा और भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे NHRC, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन এইবিলাক मेंशन নাই। सो ऑब्वियसली इंडियन पॉलिटिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनर स्टडी मेनली 80 to 85%, बट यार बाहिरत मोटामुटी बाकी 10-15% और बेलेग बेलेग बस्तु आछे आरो, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या दिक्कत होता? यदि आमार इंडिया किबा कारणत एनेके एटा सिचुएशन मैं দি আছো বাৰু যে কিবা কাৰণত सपोज एनेके मैं सपोज কৰিলো যে ইন্ডিয়াত কনস্টিটিউশন নাই। সো হোৱাট ক্যান বি দ্য ৰেপাৰকেশন? ৰেপাৰকেশন কি হ'ব পাৰে তেতিয়া? কোনো এবাইডিং কোনো ৰুল নাই। মানে আজি যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত ক্ৰাইম বুলি এইবিলাক বস্তু ক্ৰাইম বুলি কোৱা হৈছে, ক্ৰাইম যে কোৱা হৈছে ডেফিনেশ্যন ক'ত দিয়া আছে? IPC এক্টত বা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত দিয়া আছে। আদারওয়াইজ তো কোনো শৃঙ্খলাই না থাকে, কোনো ডিসিপ্লিন না থাকে, হয়নে? যেটো আমার বহুত এনেকে কান্ট্রি তাতে কনস্টিটিউশন ভালকে ডকুমেন্ট করা হওয়া নাই, আর এইটোর কারণে আজি অবস্থা বেয়া। ওয়ান অফ দোজ কান্ট্রিজ ইজ আফগানিস্তান, আজির দিনত তালিবানে ক্যাপচার করা কান্ট্রি। তাতে কোনো শৃঙ্খলা বলে একো নাই। ইন মিডল ইস্ট যদি লাহে লাহে যদি মিডল ইস্টের সাথে যদি আমি যাওঁ, যদি মিডল ইস্টত মোস্ট অফ বহুত কেইটা কান্ট্রি এনেকে আছে তাতে কনস্টিটিউশন ইমান কনক্রিট কনস্টিটিউশন নাই। তাতে কিন্তু এইখন অলপ বহুত এই অলপ নহয় বাৰু বহুত প্রবলেম তাতে আৰু, ঠিক আছে। সো কনস্টিটিউশন মানে যি রুল আমি ফলো কৰাটো আমি বাধ্য, অপশনাল নহয়। कभी मानेंगे कभी नहीं मानेंगे, अपने सुविधा अनुसार, ऐसा नहीं। सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टेड बाय ऑल, माने आप चाहे कि आप ना चाहे, आपका धर्म क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका भाषा क्या है, आप कौन सा रीजन से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर। अगर आप इंडिया के हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन मानना ही पड़ेगा, नहीं तो बाय प्रेशर आपको मनवाया जाता है वो लाठी वाठी से, आपका पुलिस को ये करके, अदरवाइज आपको मानना ही पड़ेगा। इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। এটা কান্ট্রির যিকোনো নেশনের কনস্টিটিউশন যেটো হ'ব, এই কনস্টিটিউশনে ডিফাইন কৰে, ডিসাইড কৰে যে কান্ট্রিটো কেনেকৈ ৰুল কৰা হ'ব, কান্ট্রিৰ মানুহে কেনেকৈ বিহেভ কৰিব, হয়নে? আদারওয়াইজ যদি আপোনালোকে চাই, যদি ব্রিটিশ গ্রেট ব্রিটেন আমার ইন্ডিয়াত এরাউন্ড 200 ইয়ার্স রাজত্ব কৰিলে, রুল কৰিলে, বাট গ্রেট ব্রিটেনের কিন্তু কোনো রিটেন কনস্টিটিউশন নাই, আনরিটেন কনস্টিটিউশন। whereas ইন্ডিয়ার কনস্টিটিউশন আমি অলপ দেরিকে চাম বাৰু, বাট ইন্ডিয়ার কনস্টিটিউশন দ্য লেন্দিয়েস্ট কনস্টিটিউশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইয়াতছে বেছি লেন্দিয়েস্ট কনস্টিটিউশন নাই। সো যেহেতু আমার যদি এতিয়া আমি কম্পেয়ার কৰোঁ আমাৰ লগত আৰু ব্ৰিটেনৰ লগত, আপুনি বহুত চাব তাতে আমাৰ নিচিনা মানে কি ক'ম বাৰে বস্তুখিনি মানে ফলো কৰা যিটো হায়ারার্কি প্রসেস, যে ये आदमी करेगा, ये नहीं तो वो करेगा, वो नहीं तो वो देखेंगे, बाद में हम लोग इधर के पास इनके पास जाएंगे, वो हम लोग का सोल्यूशन देंगे। নাই ইউএসত নাই, বিকজ ইউএসত ডেমোক্রেসি প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি, আমার ইন্ডিয়াত পার্লিমেন্টারি ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি, হয়নে? এগুলো তো পাইছে চাগে আপোনালোকে। গ্রেট ব্রিটেনের আনরিটেন কনস্টিটিউশন, ইন্ডিয়ার রিটেন কনস্টিটিউশন, তাতে বহুত ডিফারেন্স, মানুহৰ বিহেভিয়ারে কমপ্লিট ডিফারেন্স হৈ যায় তেতিয়া আৰু, হয়নে? সো এটা কান্ট্রি কেনেকৈ ৰুল কৰা হ'ব, এটা কান্ট্রি কেনেকৈ আমাৰ ফিউচাৰত কেনেকৈ বস্তুখিনি ডিল কৰিব, ইট কমপ্লিটলি ডিপেণ্ডছ অন দ্য কনস্টিটিউশন। তাতে ৰুল এটা বনোৱা, এটা ফ্রেমওয়ার্ক বনোৱা হ'ব। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ পার্টলি রিজিড, এটা বহুত এটা ইম্পর্টেন্ট স্টেটমেন্ট হয়, আর চাগে এইটোৰ ওপৰত বহুত এবাৰ দুবাৰ নহয় বহুতবাৰ আপোনাৰ MCQ অহা হৈছে বাৰু। MCQ অলরেডি SSC, রেলওয়েজ কক বা আপনার ADRE বা যিকোনো স্টেট গভর্নমেন্ট এক্সামস, এই পার্টিকুলার লাইনের ওপৰত কিন্তু বহুতবাৰ MCQ আপোনালোকে পাইছে চাগে। টপিকটো কোশ্চেনত এনেকে দিয়া থাকে যে व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया हैव, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल, या नन ऑफ द अबव। तो पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल कथा माने कि वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
is said to be partly rigid and partly flexible. Rigid माने एकदम माने कट्टर माने ये चेंज नहीं होगा, और फ्लेक्सिबल माने निजर सिटीजेनर सुविधा अनुसारे बस्तुखिनि चेंजेस करा जाए। ठीक है जेने कि आपनालोके चाइছে চাগে বা আপনারা গম পায় নিশ্চয়, এটুলো এবার ডিসকাশন হয়েছে চাগে ক্লাসত যে শিডিউল স্টেট আর ট্রাইবেল এরিয়া, শিডিউল এরিয়া আর ট্রাইবেল এরিয়া বলে দুটো বেলেগ বেলেগ বস্তু। ঠিক আছে যেনেকৈ আমাৰ অসম শিডিউল 6ত মেনশ্যন কৰা আছে, ঠিক আছে মই বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ বাৰু, বাট কথা হ'ল যে আমাৰ ডিপেণ্ডিং যে কোন জায়গাত কেনেকৈ ইণ্ডিয়া মানে আমাৰ দিল্লীৰ পৰা কোন জায়গাত কিমানখিনি দূৰত আছে বস্তুখিনি, দিল্লীত বহি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল পাৱাৰ ৰুল কৰিব পাৰে না নাই সেইটো চাই পিনে বহুতকেইটা জায়গাত কিন্তু স্পেচিয়েল এটা অথৰিটি দিয়া হৈছে, প্ৰেৰগেটিভ দিয়া হৈছে। তাতে অসম আমাৰ আসাম ইজ ওৱান অফ দোজ স্টেটস, যেনেকৈ আমাৰ लेह लद्दाख वन ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे थोड़ा बहुत लिबर्टी रहता है। अपना जो लोकल जो नेता लोग हैं, स्टेट का जो नेता लोग हैं, उन लोग के पास कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे आसाम के नेता के पास कंपेरेटिवली ज़्यादा पावर है। अगर आप ये में भी कंपेयर करेंगे मध्य प्रदेश के साथ, कंपेयर करेंगे यूपी के साथ, बिकॉज वो लोग एकदम सेंटर में है और वो लोग पहले से बहुत क्लियर कट उनका गाइडलाइन दिया हुआ है। लेकिन आसाम पहले से, नॉर्थ ईस्ट हम लोग का पहले से थोड़ा बिछड़ा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा केयर नहीं किया गया है। अगर आप लोग हिस्ट्री अगर देखे होंगे तो बहुत देरी में आपका आसाम के बारे में केयर करना शुरू हुआ और बहुत रिसेंटली शुरू हुआ जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हम लोग खुद भी देख पा रहे हैं। तो उसके चलते आसाम को कुछ स्पेशल सुविधाएं भी दिया गया है, इन टर्म्स ऑफ नेता को थोड़ा एक्स्ट्रा पावर भी दिया गया है। तो पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल याते दियार माने हल যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত এনেকৈ কেইটামান পাৰ্ট ইন দ্য চেঞ্চ মানে মই আৰ্টিকেল বা পাৰ্ট বা শিলে হিচাপে কোৱা নাই, এনেকৈ পোৰ্চন আছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন যিটো বাৰু কোনো পৰ্যায় চেঞ্জ কৰা সম্ভৱ নহয়, কোনো পৰ্যায় চেঞ্জ কৰা সম্ভৱ নহয়। আৰু এনেকৈ কিবা আমাৰ পোৰ্চন আছে যিটো বাৰু চেঞ্জ কৰা যায়, যিটোক আমি এমেণ্ডমেণ্ট বুলি কওঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট বুলি পাইছে, আপোনালোকে পাইছেনে? এই এমেণ্ডমেণ্ট কৰা মানে কি চেঞ্জেছ আনা, এই এমেণ্ডমেণ্ট কৰাটো সুবিধা আছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন, এইকাৰণে পাৰ্টলি ফ্লেক্সিবল। যদি এনেকৈ যেনেকৈ ছাপ'জ 1947 যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন বনোৱা হৈছিল সেই টাইমত আৰ্টিকেল আছিল কেইটা? 395 আৰ্টিকেল। আজিৰ দিনত কেইটা আৰ্টিকেল? 448 আৰ্টিকেল। सिमिलरली नंबर ऑफ पार्ट, नंबर ऑफ शेड्यूल गोटे बढ़ी गई किंतु कारण की बिकॉज उस टाइम जब इंडिया था और आज का जो इंडिया है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, सब अलग है। तो उसको आपको चेंजेस लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आपका देश आपको कैसे सपोर्ट कर पाएगा, है कि नहीं? तो चेंजेस लाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है। और ऐसा भी कुछ चीज़ है जो आपको जैसे कि मान लेते हैं, ऐसा भी अगर इसको प्लीज गलत सेंस में मत लीजिए, इसमें ऐसा भी होता है ना, हर एक जाति, हर एक धर्म अगर उनको छूट दिया जाए, हर एक जाति, हर एक धर्म अपना एक टेरिटरी मांगेगा, मांगता है। लेकिन अगर जैसे प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, आप लोग याद होगा शायद, जिते हमार यूनियन ऑफ स्टेट হৈছিল বাৰু বল্লভ ভাই পটেল আৰু ভিপি মেনন, তাতে গোটেইকেইটা ষ্টেটক একমিল মানে এছেম্বল তেখেতে কৰিছিল বাৰু, তেখেত দুজনে মেইনলি ৰেছপন্সিবিলিটি বস্তুখিনি কৰা হৈছিল। আদাৰৱাইজ এটা টাইম আছিল যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ सेपरेट सभी निजर निजर रजा, और हैदराबाद और रजा बेलेग, जूनागढ़ आपका उधर का आपका कश्मीर साइड का सब अलग अलग था। उसको अगर एक नहीं करते तो देश रहता ही नहीं, इंडिया होता ही नहीं। सेम आपका अगर आज अगर वो रिजिडिटी ना रहे तो सब अपना अपना जगह बना लेगा, उसके जगह देश कहाँ रहेगा तब, है कि नहीं? तो देश अगर छोटा छोटा इसमें बांट जाएगा उसमें बहुत दिक्कत भी है। भूटान, नेपाल बहुत छोटा कंट्री है कंपेयर टू इंडिया। आसाम का जो साइज है उससे बहुत छोटा साइज है आपका पाकिस्तान का, लेकिन वो कंट्री आज नहीं बना है आपका 1947 में। तो आज तक आज का टाइम आते आते वो लोग अपने आप को बहुत चेंजेस करके अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को बना लिया है। लेकिन अगर ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि इंडिया का कल अगर बोला जाए कि नहीं सब अपना अपना देश कर सकता है और इंडिया को 50 देश बनाया जाएगा, तो उस हर एक देश का डिफेंस सिस्टम, फॉरेन सिस्टम कैसे मैनेज होगा? संभव ही नहीं है। और बाद में कैओस होगा, वार होगा, बैटल होगा, है ना? तो इसलिए रिजिडिटी रखना भी जरूरत है। Moving forward, is a constitution. First of all, constitutional প্রথম কথা যে অবভিয়াসলি আপনাদের যদি मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री যদি অলপ সলপ যিমানখিনি পঢ়িছে আপনারা গম পাই বাৰু যে कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत पहले से डिस्कशन नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि एकदम 1600 में बात हो गया, ऐसा नहीं। 1857 सिपाही म्यूटिनी, बहुत मंगल पांडे वाज द फर्स्ट मार्टियर, আমি সবে গম পাও, যুদ্ধ হল গোটেইখিনি হৈ আছে। सो फर्स्ट कब कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत है या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कब किया गया था, सिचुएशन क्या था?
सिचुएशन था साइमन कमीशन। कब आया था इंडिया में साइमन कमीशन? इंडियात केते आइছিল বাৰু? কোন ইয়াৰত আহিছিল? 1927। साइमन गो बैक। तो साइमन कमीशन 1927 में आया था। साइमन कमीशन आने का उसमें बहुत सारा अलग अलग उसमें प्रोविजन है, अलग अलग डिस्कशन है। उसमें एक चीज बोला गया था कि साइमन का जो एक ये निकला था, एक क्या बोलेंगे उसको, डॉक्यूमेंट जो निकला था साइमन कमीशन का, उसमें ये बोला गया था कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना के देते हैं। साइमन कमिशनार जो अकल तो साइमने मेम्बर नाছিল, बेलेग बेलेग मेम्बर আছে, but Simon was the head, so আমি সাইমন কমিশন নাম জানো বাৰু। জন সাইমন was the complete name। so তেখেতে বাৰু ফুল নেম, তেখেতে কি কৈছিল যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এনেকে এনেকে হ'ব লাগে, কিবা এটা গাইডলাইন কিবা দিছিলে আৰু। বাট এটোৰ বাৰু বিৰোধ प्रोटेस्ट কৰা হৈছিল। साइमन कमीशन वाज बहुत बुरी तरह उसको प्रोटेस्ट किया गया था, और उसी प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय का उनपे वो मर गए थे। कैसे मरा था? लाठी चार्ज हुआ था, तो उनके सिर में लाठी लगा था, उससे लाला लाजपत राय का डेथ हुआ था। ठीक है, ये साइमन कमीशन का विरोध करने के टाइम ही ये लाला लाजपत राय का डेथ हुआ था। जब देखे कि साइमन कमीशन का इतना विरोध हो रहा है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो बाद में साइमन कमीशन ये बोलता है तुम लोग अगर तब तो ऐसा बोला जाता ना, डॉग्स एंड इंडियंस आर सेम, मतलब बोला जाता कि बिवेयर ऑफ, मतलब डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, हर एक जगह पे ऐसा लिखा रहता था। तो इंडियंस को बेसिकली डॉग्स से कंपेयर किया जाता था। तो बोला गया था कि तुम लोग डॉग्स लायक, मतलब डॉग्स के कैलिबर रखने वाले आदमी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कैपेबिलिटी है नहीं, तो अगर हिम्मत है तो बना के दिखाओ। तो एक चैलेंज किया गया था बाय साइमन कमीशन, যদি ইণ্ডিয়া যদি হিম্মত থাকে, যদি কাৰেজ থাকে, তেতিয়া নিজৰ কনষ্টিটিউশ্যন বনোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া এই সময়ত ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য ৰেপুটেড এডভোকেট আছিল মতিলাল নেহেৰু, জৱাহৰলাল নেহেৰু নহয়, মতিলাল নেহেৰু, ফাদাৰ অফ জৱাহৰলাল নেহেৰু। তেখেতে এটা ৰিপৰ্ট দিলে, নাম আছিল নেহেৰু ৰিপৰ্ট। তেখেতে এটা ৰিপৰ্ট দিলে, নাম আছিল নেহেৰু ৰিপৰ্ট। ঠিক আছে, কোন ইয়াৰত দিছিল? 1928। 1928ত নেহেৰু ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰা হৈছিল অল পাৰ্টি কনফাৰেন্স। অল পাৰ্টি মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত তেতিয়া অবভিয়াছলি INC, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ প্ৰমিনেণ্ট পাৰ্টি আছিল, বাট ইয়াৰ বাহিৰত আৰু সৰু সৰু বহুত কেইটা পাৰ্টি আছিল। চ' এটা পাৰ্টি এটা কনফাৰেন্সৰ ই হেড আছিল, মানে ই চেয়াৰমেন আছিল। তেখেতে বাৰু এই ৰিপৰ্টটো দিছিল, নেহেৰু ৰিপৰ্ট দিছিল, मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट आपका आज हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, ये रिपोर्ट से कोई उसका रिलेशन ही नहीं है। वो एक जस्ट एक रॉ वर्जन था, बिकॉज चैलेंज किया गया था। ही वाज अ लिटरेट पर्सन, तेखेतर लॉ सम्पर्के बहुत ज्ञान आछिल, तेखेते एकटा इ दिছিল बारू, बट फाइनली इट वाज नॉट एक्चुअली माने फॉलोड बा इमान भालके एटु इ करा हुआ নাই। এতিয়া কনস্টিটিউশন বলে আমি যে কৈ আছো বাৰু, কনস্টিটিউশন প্রথম কোন কান্ট্রিত কনস্টিটিউশন इ करा হয়েছিল? এটা 1787 यूएसए। 1787 में यूएसए में आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था। 1787 में क्यों लाया? बिकॉज उससे पहले 1776 में उनको इंडिपेंडेंस मिला था। यूएसए को 14 जुलाई 1776 में उनको इंडिपेंडेंस, किससे इंडिपेंडेंस मिला था? फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन। ये इसलिए पूछा गया है, आपका क्वेश्चन एक था, मोस्ट प्रोबेबली एसएससी CHSL का क्वेश्चन था कि यूएसए गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1776, कौन सा कंट्री से इंडिपेंडेंस मिला था? तो सबका मतलब, और ये देखिए अगर ग्रेट ब्रिटेन का बात होगा, अगर मैं अभी आप सोचेंगे कि उस टाइम कोलोनियल पीरियड जो था, सबसे ज्यादा दबदबा ग्रेट ब्रिटेन का ही था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के सामने बाकी सबका पावर कुछ भी नहीं था। तो कॉलोनी बनाने का, रूल करने का एकमात्र क्षमता, एकमात्र कैपेबिलिटी आपका ग्रेट ब्रिटेन का ही था। लेकिन जब क्वेश्चन आया था, आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 2.3% स्टूडेंट आपका ग्रेट ब्रिटेन में टिक किए थे। और सिंपल लॉजिक ये है, ग्रेट ब्रिटेन तो इंडिया में बिजी था, ग्रेट ब्रिटेन तो ये सब इंडिया बांग्लादेश लिया था, वो उधर यूएसए इतना डेवलप कंट्री, डोनाल्ड ट्रम्प जैसा पागल रूल करता है, उसको कैसे ये करेंगे? बट ग्रेट ब्रिटेन तब एक वर्ल्ड पूरा ज्यादातर जगह अगर रूल उस टाइम हो रहा था, वो ग्रेट ब्रिटेन ही कर रहा था। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन आपको यूएसए को रूल कर रहा था। जो इंडिपेंडेंस मिला 4 जुलाई 1776 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 11 साल बाद, आफ्टर 11 इयर्स 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था यूएस में। ठीक है, और ये एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, बट इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है, ये लाइकली है, ये बहुत स्वाभाविक सा बात है कि डेमोक्रेटिक कंट्री माने कि जी कंट्री
সিটিজেনৰ ৰাইট আছে কথা কোৱাৰ আৰু মানে আপোনালোকে যদি গম পায় যদি তাতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ ৱৰ্ল্ডত আছে যেনেকৈ প্লুটোক্ৰেসি অলিগার্কি मोनार्की मोनार्की मैंने गम पाए ना राजा रूल करे ऐसा कोई देश का नाम बोलिए तो जो राजा रूल करता है राजा जो बोलेगा वही फर्स्ट एंड वही फाइनल है ना भूटान में आपका डेमोक्रेसी चलता है इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ जो है उनको उतना ज़्यादा पावर नहीं है वो सिर्फ एक है उनका क्राउन है लेकिन पावर वाइज उनका एक कैबिनेट में सब कुछ है द मोस्ट खतरनाक कंट्री टू हैव मोनार्की इज नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया में आप कुछ बोलेंगे इधर उधर आपका नेक्स्ट दिन कुत्ता का भोज बन जाएंगे खत्म ठीक है तो नॉर्थ कोरिया बहुत खतरनाक है तो ये माना जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है लेकिन ये लाइकली नहीं है मतलब ये हर जगह होता भी नहीं अगर इतना देश अगर देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसा भी देश है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ठीक है मूविंग फॉरवर्ड अभी टाइमलाइन रिलेटेड टू कन्स्टिट्यूएंट एसेम्बली आमी सबे गम पाओ जे आमार कन्स्टिट्यूशन बनवा जेतिया হৈছিল বাৰু কেতিয়া হৈছিল কি হৈছিল কেনেকৈ হৈছিল ডিসকাস কৰিম বাৰু বাট কনস্টিটিউশন বনোৱাৰ যে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যে টিম বা এটা গ্ৰুপ বনোৱা হৈছিল যাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কনস্টিটিউশন বনোৱাৰ কাৰণে এটো আছিল কনস্টিটিউएंट এছেম্বলি তেখেতে আৰু বেলেগ বেলেগ কমিশন আছিল ড্ৰাফটিং কমিটি আছিল বেলেগ বেলেগ কমিটি আছিল বাট মেইন কনস্টিটিউएंट এছেম্বলি আছিল বাৰু এতিয়া কথা হল 1928 নেহেৰু ৰিপোৰ্ট মতিলাল নেহেৰু দিলে বাৰু যেটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিলো ইয়াৰ পিছত 1934 এম এন ৰয় তেখেতে প্ৰপ'জ কৰিলে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্টিটিউएंट এছেম্বলি হোৱাটো প্ৰয়োজন মানে আমাৰ কনস্টিটিউশন আমি বনাম তো কনস্টিটিউएंट এছেম্বলিৰ যে মেম্বাৰ হ'ব যি মানুহজনে আৰু কনস্টিটিউশন ফাইনালি বনোৱাৰ কাৰণে হেল্প কৰিব কন্ট্ৰিবিউট কৰিব তেখেতে সেপাৰেট এটা আমাৰ টিম হোৱা প্ৰয়োজন যাক কনস্টিটিউएंट এছেম্বলি কোৱা হৈছিল আৰু এই আইডিয়া দিয়া হৈছিল এম এন ৰয়ে দিছিল 1934 ফাইনালি 1935 ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অফিচিয়েলি ডিমান্ড কৰিলে অফিচিয়েলি এম এন ৰয় জাস্ট ইটো প্রপোজ করেছিল ऑफिशियली डिमांड करा হয়েছিল इन द ईयर 1925 बाय आईएनसी ठीक है सर जो हम लोग को भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्लियर है ओके इतिया ऑफर अगर आप देखेंगे अगर हिस्ट्री में अगर आप लोग देखेंगे उस दौरान माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1935 में मांगा गया था जैसे कि अभी हम देखे हैं और 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला है उस बीच में ना ब्रिटिश हम लोग को बहुत सारा ऑफर दिया था क्यों दिया था ऑफर ये सब ऑगस्ट ऑफर क्रिप्स प्रपोजल उसमें भी आपको बोला गया था वेवल प्लान कैबिनेट मिशन प्लान फाइनली जो चलते कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये ऑफर सब क्यों दिया गया था हाँ ऑफर क्यों दिया गया था ब्रिटिश जो कंट्री आके 200 साल खून चूस के जा रहा है उसका पागल थोड़ी है पागल कुत्ता थोड़ी काटा है कि मैं इसको ऑफर देने लगूंगा आप ये कर लीजिए आप वो कर लीजिए आप लोग अपना ये बना लीजिए ऑफर क्यों दिया गया था वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं 1939 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था 1914 टू 1918 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जेतिया स्टार्ट হৈছিল स्टार्टिंग होते बारो ठीक আছিল बात लाहे लाहे ब्रिटिशर अवस्था बेया हो गल अवस्था माने नाई आरो चांस नाई जितार तेतिया इंडिया कन्ट्रिब्यूशन लागे इंडिया हेल्प लागे इंडियन सोल्जार्स लागे एतिया इंडिया जेतिया इमान इंडिया जी हकल माने प्रमिनेंट नेता আছিল महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी हकल प्रमिनेंट नेता तेखते कले आमार मानु क्यों जाबो ताते कोनो लाभे নাই आमार गई पेने की लाभ আছে तो इसीलिए ताकि कन्विंस करने के लिए आप लोग आइए आप लोग सोल्जर भेजिए बाद में आप लोग को ऑफर दिया गया है लेकिन ये अगर आपको ये जानकारी है आपका इसका ये एक भी ऑफर सिवाय कैबिनेट मिशन प्लान एक भी ऑफर आपका फ्रूटफुल नहीं था काम में नहीं आया ये अगस्त ऑफर 1940 में दिया गया था यार पिछले की हुई अगस्त ऑफर का रिपरकेशन क्या हुआ था इसके बाद एक इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह इसका एगेंस्ट में इंडिविजुअल सत्याग्रह करा হৈছিল क्रिप्स मिशन 1942 क्रिप्स मिशन होৱাৰ পিছত এটো তো ফেল হৈ গল নেক্সট কি প্रोटेस्ट আহিল क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट वेवल प्लान एटो बारो हुआ ना क्यों हुआ नहीं वेवल प्लान बेसिकली शिमला तेतिया बारो तेतिया ना कैपिटल बेलेग बेलेग करा হৈছে शिमला बारो ठंडा जगह तो ब्रिटिशे की बनाई दिले जे
Summer capital will be Shimla. Obviously, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইণ্ডিয়াৰ কেপিটেল আছিল কেলকাতা। কোন ইয়াৰত কেলকাতাৰ পৰা নিউ দিল্লী কৰা হ'ল কেপিটেল? 1911। এই সময়ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল মানে ভাইচৰয় কোন আছিল? উইলিয়াম বেন্টিক। ততক্ষণে সে উপরে लॉर्ड हार्डिंज। वेवल प्लान क्या हुआ था उस टाइम? क्या किया गया था? पहले तो कलकत्ता था, दिल्ली लाया गया, तो बोलता है कि गर्मी लगता है हम लोग को, गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्मी लगता है, देश तो हम लोग का ही है, ब्रिटिश तो मान ही लिया था उन लोग का देश है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ठंडे के दिन में हम लोग का कैपिटल रहेगा दिल्ली, गर्मी के दिन में कैपिटल रहेगा शिमला। तो शिमला था उस टाइम का कैपिटल, और इस शिमला में सबको बुलाया गया, सबको मतलब आईएनसी और मुस्लिम लीग को बुलाया गया। आईएनसी मुस्लिम के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट नेता लोग को बुलाया गया कि अब आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं और आप लोग को जो जो शर्तें हैं, जो जो कंडीशन है दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम क्या था, ज़्यादातर नेता सब आपका अरेस्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद बहुत किसी को अरेस्ट किया गया था, उस टाइम भी बहुत सारे नेता अरेस्ट था, तो कोई जा ही नहीं पाया, तो ये भी आपका फेल हो गया। ये तीनों आपका फेल हो गया। फाइनली आपका 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया जो सक्सेसफुल हुआ। ये कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन मेंबर कौन था? ये कैबिनेट मिशन प्लान में मेंबर कौन कौन था? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, जाना प्रयोजन है। तो कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर था, 3 मेंबर्स वर देयर। एवी अलेक्जेंडर, हाँ, स्टेफोर्ड क्रिप्स और कौन आছিলে এজন? एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉरेंस, सम लॉरेंस এজন আছিল। ঠিক আছে, এই তিনজন আছিল कैबिनेट मिशन प्लान और मेंबर। सो कैबिनेट मिशन प्लान में ये बोला गया था कि हम लोग हाँ, इसमें और एक सवाल आता है कि कैबिनेट मिशन प्लान था वो मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों एक्सेप्ट किया था, आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों एक्सेप्ट किया था। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान आने से पहले अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन प्लान और उसके बाद वेवल प्लान, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था। कारण क्या है? वाई आईएनसी क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था और मुस्लिम लीग क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था? मुस्लिम लीग एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया था बिकॉज मुस्लिम लीग जब बना था 1906 में, उसके बाद वो लोग एक सेपरेट कंट्री डिमांड कर रहे थे। पाकिस्तान बोल के नहीं था, नाम तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन बोला गया था कि हम लोग एक सेपरेट कंट्री चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या था? नहीं मिल रहा था। और उसके सपोर्ट में कुछ ही आदमी स्टार्टिंग में थे, धीरे धीरे मुस्लिम लीग बढ़ने लगा। उसके बाद ये जो तीनों जो ऑफर हम लोग देखे हैं, जस्ट अगस्त ऑफर और ये सब वेवल प्लान और क्रिप्स प्रपोजल, इसमें ये अलग से एक मुस्लिम कंट्री होगा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। क्योंकि नहीं था तो मुस्लिम लीग का रिजेक्ट हो गया, मुझे इसको रिजेक्ट कर दिया। और आईएनसी क्यों रिजेक्ट किया? बिकॉज आईएनसी मांग रहा था पूर्ण स्वराज, आईएनसी मांग रहा था पूर्ण स्वराज, और उनको दिया क्या बोला जा रहा था, क्या लेने बोला जा रहा था? डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा था, डोमिनियन स्टेटस। अभी पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेटस में क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली आर्मी का बात नहीं है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि आप लोग जो करना है कीजिए, बट द फाइनल राइट, फाइनल ऑथोरिटी रहेगा ब्रिटिश क्राउन के पास। और पूर्ण मतलब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आप एकदम पूरा इंडिपेंडेंट हो गए, सॉवरेन हो गए, आप लोग अभी जो करना है आप लोग कीजिए, वो नहीं था। डोमिनियन स्टेटस दे रहा था कि हम लोग ऊपर में रहेंगे, आप लोग लेकिन जो करना है कीजिए। तो वो आपका आईएनसी अलाउ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया, वो आगे का 3 प्लान, बिकॉज उन लोग को सेपरेट कंट्री चाहिए। अभी ये क्यों एक्सेप्ट हुआ? ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान क्यों एक्सेप्ट हुआ? पहला कारण है आईएनसी इसलिए एक्सेप्ट किया बिकॉज इसमें बोला गया है कि हाँ पूर्ण स्वराज दिया जाएगा। और मुस्लिम लीग क्यों एक्सेप्ट किया? इसमें थोड़ा एक ट्विस्ट है। कैबिनेट मिशन प्लान जब दिया गया था তাতে কোথাও এনেকে মেনশন নাছিল যে পাকিস্তান বনোৱা হ'ব বা সেপারেট कंट्री बनाई दिया নহয়। এনেকে কোৱা হৈছিল कि ठीक है बाद में एक मुस्लिम जगह एक अलग से बनाया जाएगा सेपरेट,
वो आपके इंडिया के अंदर होगा, वो इंडिया के बाहर एक सेपरेट कंट्री होगा, वो कुछ नहीं बोला गया था। पाकिस्तान का नाम होगा ऐसा कुछ नहीं बोला था, एक सेपरेट एक जगह होगा मुस्लिम का, वो देखा जाएगा। तो मुस्लिम को थोड़ा होप मिला, उसमें बात होपफुल है, क्योंकि पहला तो प्लान में ये सब बातें कभी डिस्कस हुआ ही नहीं था, तो उसके चलते वो लोग एक्सेप्ट कर लिए। ओके, अभी शुरू हुआ। देखिए डोमिनेंट स्टेटस के बारे में जो बोल रहा था, डेफिनेशन दिया है, एक बार देख लीजिएगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक? आज के दिन में जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है, इसका वेट लगभग कितना है, आइडिया? 10 kg, 10 kg। इसका क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, इसका क्वेश्चन आया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है इसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना है। 10 kg इज द आंसर, 10 kg लगभग, ठीक है, 10 kg इज द आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए अभी प्रोविजन ऑफ द सीएमपी, अभी क्या हुआ, जो कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसमें टोटल सीट कितना दिया गया था? टोटल सीट आपका दिया गया था 389। आप देख पा रहे हैं कि टोटल सीट आपका था 389 कि ये सीटों में आपका चुनाव होगा, इलेक्शन होगा या जो भी होगा। ये 389 जो सीट असेल, ये टोटल सीटर भितरत इलेक्टेड असेल 296 इलेक्टेड सीट। दुटा बस्तु है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। आमार आजिर दिनत आमार प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड ना नॉमिनेटेड? इलेक्टेड। आप बोले थे कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होना पड़ेगा, कब बोले थे, कहाँ बोले थे आप कौन सा जगह आप ये बोले थे कि आपका बात सुना गया कि नरेंद्र मोदी हम लोग को प्राइम मिनिस्टर चाहिए, राजनाथ सिंह या अमित शाह होने से नहीं होगा? आप कहाँ बोले थे ये चीज? आप नहीं बोले थे, आप नहीं बोले थे। आप सिर्फ उस पार्टी के उस आदमी को वोट दिए थे, आपके जगह से राजनाथ सिंह है या जो भी है उनको आप वोट दिए थे। वो पार्टी जब जीता वो लोग नॉमिनेट किया नरेंद्र मोदी को, आप हम लोग का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ पोस्ट ऑफ इलेक्शन, इट्स अ पोस्ट ऑफ नॉमिनेशन। प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता है। एमपी एमएलए इलेक्ट किया जाता है, हम लोग वोट देके इनको जिताए हैं, हम लोग वोट देके इनको हराए हैं, वो इलेक्ट होता है, नॉमिनेट हम लोग नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो आपका ये 296 इलेक्टेड पोस्ट था और रिमेनिंग 93 ये आपका नॉमिनेटेड था, ये आपका था नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड माने प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। इथे जे 296 इलेक्टेड असेल याचा एक दुटा पार्ट असेल, 292 और 4। 292 रूल्ड बाय गवर्नर, रूल्ड बाय गवर्नर, और 4 रूल बाय चीफ कमिश्नर। दिस इज द एक्चुअल डिवीजन। 389 टोटल सीट, ये 389 और दुटा बाइफर्केशन असेल, 296 इलेक्टेड सीट असेल माने याते इलेक्शन करा होइছিল और 93 नॉमिनेटेड। प्रिंसली स्टेट माने की? प्रिंसली स्टेट माने फुल्ली कंट्रोल ना, ना एक्चुअल डेफिनेशन है। देखिए प्रिंसली स्टेट होगा कि नहीं होगा ना, किंग रूल करबे ठीक है, बट प्रिंसली स्टेट जब मैं इस टाइम का बात बोल रहा हूँ आपका 1857 1890 ये सब ड्यूरेशन में, जब प्रिंसली स्टेट ये हुआ करता था, जूनागढ़ सो प्रिंस से बना दिया, तब किसी भी राजा का इतना क्षमता नहीं था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाके बोलेगा कि मैं इसका राजा ही रहूंगा, आप लोग इसको नहीं रूल कर पाएंगे। तो किसी का उतना साहस ही नहीं था। ब्रिटिश डिसाइड किया कि मैं दिल्ली से रूल करूंगा, मेरे पास इतना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मेरे पास इतना सिपाही है, तो मैं ये जो दूर का जगह है मैं इसको इधर से रूल नहीं कर पाऊंगा। यार पर बहुत दूर होता समय केनेके रूल करें जाते जेने कि आमार अमृतसर रंजीत सिंह आसिल रजा, केनेके रूल करें जाते रूल करा सम्भव नय। फार्स्ट कथा। 2 नम्बर कथा, मैं गम पाओ सपोज मोर हाथ दुजन मानुह आछे दिग्विजय आकाश, मैं गम पाओ दिग्विजय আজি बा काली किबा एटा झामेला करा एटा चान्स आछे, याक निजर कमप्लिटली निजर कन्ट्रोलत राखातो भाल। आकाशे अलरेडी ललिपप ठलिपप खाय पूरा एकदम हेक अवस्था और ইয়ারে হুজুর এনেকে আর হবে এনেকে থাকে আর কথাই নাই, ইয়াক আর ক্যাপচার করে কি লাভ? ये तो ऑलरेडी আমার तलते आसे और या करो कैप्चर करी की लाभ? तो जो ऑलरेडी मान गया था इसका श्योर है कभी सिर उठा के नहीं बात करेगा। तो प्रिंसली स्टेट जो थोड़ा रिस्क है, जिसको कभी ना कभी थोड़ा डाउट था, उसको ये कर लेंगे, है कि नहीं?
तो आपका टोटल 389 में 296 इलेक्टेड, 93 था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब जो सब अपने से रूल करता था, लेकिन उनको टैक्स मंथली देना पड़ता था ब्रिटिश को, टैक्स डेफिनेटली उनको मंथली देना पड़ता था। 296 और भीतर 292 और 4, 292 वाज रूल्ड बाय द वाइसरॉय गवर्नर, बिकॉज ये ज्यादा प्रोमिनेंट था। ऐसा भी 4 छोटा मोटा जगह था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो चीफ कमिश्नर से काम चल जाएगा, उसको इसमें अलग से कैटेगरी किया गया। क्लियर है? अभी देखिए ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन कैसा इलेक्शन हुआ था? ये जो 296 सीट में इलेक्शन हुआ था, कैसा इलेक्शन था वो? कैसा इलेक्शन था? हम लोग जैसे देते हैं ऐसा इलेक्शन कि कैसा? ये एक्चुअली हुआ था आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये आपका हुआ था इनडायरेक्ट इलेक्शन। उससे पहले थोड़ा ये देख लेते, उसको इसमें थोड़ा बात करने का जगह है, इसको थोड़ा बोल लेते। देखिए जब ये इलेक्शन का बात हुआ, जब ये हुआ कि नहीं अभी डिवाइड होगा, ये होगा, तब क्या बात हुआ कि नहीं कि हमेशा ब्रिटिश का नियम ही था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो देखा कि इसमें मेनली मुस्लिम, सिख और जनरल 3 अलग अलग कम्युनिटी बना दिए वो लोग, कि मुस्लिम से भी नेता चाहिए, सिख से भी नेता चाहिए, जनरल से भी चाहिए। जनरल माने मुस्लिम सिख छोड़ के सब, उसमें हिंदू क्रिश्चियन सब आएगा। ये कंडीशन रखा था। दूसरा कंडीशन रखा 1:1 मिलियन। 1 मिलियन माने 10 लाख, 10 लाख माने जिस जगह में मान लेते हैं उस टाइम कोकराझार में अगर 10 लाख आदमी था तो 10 लाख में से एक ही आदमी को लिया जाएगा, 2 आदमी नहीं जाएगा। उससे क्या फायदा होगा? कोई एक जगह से 2 आदमी जाएगा तो वो जगह स्ट्रांग हो जाएगा, उसको कभी ज्यादा पावरफुल बात करेगा, तो उसको किसी को मौका ही नहीं देना है। तो हर एक 10 लाख में से एक आदमी को चुना जाएगा, पहला। और दूसरा है आपका रिलीजियन वाइज आपको डिवाइड कर दिया था, ताकि सबको दिखाया गया कि सब खुश रहे, लेकिन एक्चुअली इसका मेन पर्पस था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ताकि पहले से वो लोग अपने आपस में मारामारी शुरू करें। अभी आइए इलेक्शन कैसे हुआ था। इलेक्शन हुआ था इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। এমএলএ আমি ভোট দেওয়ার সময়ত আমি ভোট দিও, এমএলএ আমি ডাইরেক্টলি সিলেক্ট করো, डायरेक्टली আমার ফালৰ পৰা एमएलए एमपी डायरेक्टली सिलेक्ट करा हो, डायरेक्ट इलेक्शन। बट लोकसभा का मेंबर बनने के बाद, एमपी बनने के बाद जो राज्यसभा जो बनता है वो हम लोग में उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। राज्यसभा का एक भी मेंबर हम लोग के कोई वोट के चलते नहीं गया है, वो पूरा पूरी डिसाइड करेगा लोकसभा का मेंबर, और अलग अलग प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली से जाएगा, ये सब जाएगा। तो उसमें हम लोग का कोई लेना देना है ही नहीं। तो वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन, बिकॉज हम लोग उसको डायरेक्टली नहीं करते हैं। हम लोग जिनको चुने हैं वो लोग ही फाइनली उधर गए होंगे, उनको किए होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली गए होंगे, पहला बात। दूसरा बात है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एसटीवी का मतलब क्या होता है? एसटीवी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, को समझिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, तो समझिए। এটা হয় যে सपोज 2 जन मेंबर আছে, হিরক और जनक, 2 जन मेंबर, यही 2 आदमी है मेरे पास ऑप्शन वोट देने के लिए, तो मैं किसी एक को दूंगा, एक को नहीं दूंगा। जिनको ज्यादा वोट मिलेगा जीत जाएगा। अभी मान लीजिए 10 आदमी वोट पे खड़ा हुआ है, 10 आदमी, और मुझे ये नहीं बोला गया कि आप किसी एक आदमी को चुनिए ना, वो मुझे राइट दिया ही नहीं गया है। आपको रैंकिंग करने बोला है कि 10 आदमी में मेरा पहला ऑप्शन मैं चाहूंगा कि जनक, दूसरा हिरक, तीसरा आकाश, चौथा पृथ्वीराज। मुझे 10 का मुझे रैंकिंग करना है, समझे? उसमें से क्या होगा, जो आदमी ज्यादा बार टॉप पोजीशन में आया है, ज्यादातर आदमी जिसको पहला पोजीशन में रखा है, वो फाइनली आपका उस पर्टिकुलर का पोजीशन का नेता बनेगा। लेकिन जो रैंकिंग सिस्टम है, जो नीचे रहेगा उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है? वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उस आपका रैंकिंग सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है? जो कि आज के दिन में होता है कहां पे? लोकसभा का मेंबर या जैसे राज्यसभा का मेंबर जब चूज किया जाता है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से किया जाता है। क्लियर है? मूविंग फॉरवर्ड, ये सब हो गया। मूविंग फॉरवर्ड आइए, इलेक्शन। अभी जैसे ये सब जो हो रहा था, इलेक्शन के बारे में हुआ कि 296 सीट्स है, ये है वो है। इलेक्शन कब हुआ था? इलेक्शन आपका हुआ था जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946। रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा बाद में बात। जुलाई अगस्त, कुछ बात करना है क्या अभी? तो এই যে ইলেকশনৰ কথা কোৱা হৈছে, ইলেকশন বাৰু কৰা হ'ল কেতিয়া? জুলাই অগষ্ট 1946। ৰিজাল্ট অফ ইলেকশন, ইলেকশনৰ ৰিজাল্ট কি হ'ল? আইএনসি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসৰ হাতত থাকিল 208 সিট মেজৰিটি।
208 सीट, मुस्लिम लीग 73 सीट, और इंडिपेंडेंट जो आपका कुछ कुछ पार्टी था उनको मिला 15 सीट, 15 सीट। ये नंबर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी क्या हुआ, इसके बाद फाइनली हम लोग को पता है कि 1947 15 अगस्त 1947 आफ्टर पार्टीशन मुस्लिम लीग हट गया था, उन लोग का अलग से देश बन गया। तो ये जो नंबर ऑफ सीट हम लोग का कितना था 396 है ना, वो आपका घट के आपका 299 में आके रुका था। ये जो आपका नंबर ऑफ सीट पहले कितना था, पहले आपका टोटल नंबर ऑफ सीट था आपका 389, सॉरी 389। ये 389 बाद में मुस्लिम लीग जब पूरा पूरी विथड्रॉ कर लिया वो आपका 299 हुआ। लेकिन एक चीज है इसमें एक चीज है जो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि मुस्लिम लीग बहुत को ये मानता है कि रिजल्ट आया ইলেকশনের রেজাল্ট আহা লগে লগে মুসলিম লীগ উইথড্ৰ কৰিলে, নহয়। অবভিয়াসলি মুসলিম লীগ ইলেকশনের রেজাল্ট আহাৰ পিছত উইথড্ৰ কৰাৰ এটা প্ৰপোজাল ৰাখিছে যে আমি উইথড্ৰ কৰিলো, আমি ইয়াতে মানে এইবিলাক আমি टेक पार्ट नकरो और। बट तब ऐसे चीज को समझाया गया जो तब उस टाइम आपका वेवल था, लॉर्ड वेवल था, बाद में माउंटबेटन आया, तो उनको ऐसे चीज को मुस्लिम लीग को बोला गया कि देखिए थोड़ा पहले पेशेंस रखिए, आप अभी ये नंबर ऑफ सीट आप देख रहे हैं कि आप हार गए और अभी आप विथड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं, आप थोड़ा रुकिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाएगा। तो वो लोग भी ना चाहते हुए कुछ दिन और रुका, तो देखने के लिए क्या होता है, क्या हुआ बाद में देखिए। ये जो 299 जो हुआ ये फाइनली लास्ट में हुआ आफ्टर पार्टीशन, ये बीच में नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ उसके बीच में गैप है। 1946 हम लोग का पार्टीशन हुआ, 1947 बीच में 1 साल का गैप है। वो 1 साल में वो लोग विथड्रॉ करके नहीं था, वो लोग था उसमें। अभी क्या हुआ देखिए, उसमें ना उन लोग को कुछ इंटरिम गवर्नमेंट एक बनाया गया, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्पररी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक बनाया गया आफ्टर इलेक्शन। इस गवर्नमेंट में क्यों बनाया गया, बिकॉज ऑलरेडी कैबिनेट मिशन प्लानर पर এটা অলরেডি ডিসিশন লোৱা হৈছিল যে ইন্ডিয়াক ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিয়া হ'ব, सॉरी पूर्ण स्वराज दिया होगा इंस्टेड ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो अगर पूर्ण स्वराज देना पड़ेगा तो गवर्नमेंट देश का रहेगा, अपना गवर्नमेंट रहेगा, अपना गवर्नमेंट अपने देश को रूल करेगा। तो रूल करने के लिए तो एक पावर का ट्रांजिशन होना पड़ेगा, उससे पहले पावर था आपका ब्रिटिश के हाथों। तो इंटरिम गवर्नमेंट एक बनाया गया, टेम्पररीली एक गवर्नमेंट बनाया गया जो इंडिपेंडेंट होने तक बाकी सब कार्रवाई करते रहेंगे, ठीक है। तो वो टू हेल्प इन स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिपेंडेंट इंडिया। 2 सितंबर 1946 वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 2 सितंबर 1946 इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया है, ठीक है। सेकेंड थोड़ा डेट को देखिए, 1946 सितंबर, इंडिपेंडेंस मिला आपका अगस्त 1947, बीच में 11 महीना भी है। ये 11 महीना इंटरिम गवर्नमेंट का ही शासन चलता था। अब इंटरिम गवर्नमेंट क्या था उसमें, इट लास्टेड अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस तक वो चला, उसके बाद पार्टीशन हो गया इंडिया पाकिस्तान में। इस इंटरिम गवर्नमेंट का मिनिस्टर कौन कौन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एमसीक्यू में हमेशा आता है कि इंटरिम गवर्नमेंट का मिनिस्टर कौन कौन था। इसमें बहुत सारा और मिनिस्टर भी था, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर का लिस्ट किया हूं इसमें। मतलब मैं और एक चीज में क्लियर कर दूं, অকল এইটোৱে লিষ্ট নহয়, ইয়াৰ বাহিৰত আৰু মোটামুটি 10টা 15টা মিনিষ্টাৰ আছে বাৰু, বাট এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট, ক্লিয়াৰ। এইকেইটাৰ পৰা নৰ্মালি কোশ্চেন আহা বুলি দেখা যায়। আৰু ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে अगर आप लोग देखेंगे जैसे कि बोला गया था ना, मुस्लिम लीग क्या बोला था कि हम लोग को 70 सीट मिला है, हम लोग तो नहीं खेलेंगे, हम लोग जा रहे टाटा। तो बोल रहा है नहीं रुके थोड़ा देखा होगा, बिकॉज लॉर्ड माउंटबेटन तब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था इंडियन पॉलिटिक्स में। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ आप जितना भी फोटो वोटो देखे होंगे, वो एक बूढ़ा आदमी होता था लॉर्ड माउंटबेटन, ये दोनों को एक साथ लेके चलता था। तो बोला था कि आप कुछ दिन रुकिए, देखते हैं कुछ किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा। इंटरिम गवर्नमेंट जब बनाया गया, देखिए आईएनसी का तो पोस्ट रहेगा, आईएनसी जीता तो उनका तो पोस्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन मुस्लिम लीग को भी देखिए कुछ कुछ पोस्ट दिया गया है, कुछ कुछ पोस्ट मुस्लिम लीग को भी दिया गया था, बाकी तो आईएनसी लिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग को नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में वही एक बात आ गया कि हम लोग को प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं मिल रहा है, हम लोग को अलग से देश ही चाहिए, हम लोग को प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं मिल रहा है। इसके चलते फाइनली वो लोग 1947 में विड्रॉ करके अलग से देश बनता है। बात क्लियर है। लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो आपका नाम है, ये आपका एग्जाम मतलब इसका मिनिस्टर कौन था, इसका मिनिस्टर कौन था, एग्जाम में आता है, ठीक है। होगा बाद में तो इसका स्क्रीनशॉट देंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी सेशन देखिए, ये जो आपका गवर्नमेंट बनाया गया, इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया सितंबर 1946 में,
गवर्नमेंट बना के रख देंगे तो क्या फायदा है, उसका तो सेशन होना पड़ेगा, मीटिंग होना पड़ेगा, आपस में डिस्कशन करना पड़ेगा क्या क्या हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये इंटरिम गवर्नमेंट का फर्स्ट सेशन कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर से लेके आपका 23 दिसंबर 1946 इंटरिम गवर्नमेंट का आपका ये हुआ था। ओके, पहला सेशन हुआ था और उसमें टोटल कितना मेंबर आए थे, 221 मेंबर आए थे, 211 मेंबर, 221 मेंबर आए थे पहला सेशन में टेक पार्ट करने, इसमें से आपका फीमेल भी थे, फीमेल नेता भी थे। ठीक है, अभी टोटल कितना सेशन हुआ था, 11 सेशन हुआ था, 11 सेशन हुआ था, दिस इज द लास्ट सेशन। लेकिन आपको अगर एग्जाम आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये 3 सेशन से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। আসিল বাৰু 11টা সেশন, কেতিয়া মই সোয়া নিচিনা মই সোয়া আৰু এনেকে কেতিয়া खुदा माना जाए 5th सेशन कब हुआ था, 6th सेशन कब हुआ था, कुछ नहीं पूछा गया। ज्यादातर आपको पूछा जाता है ये 3 सेशन, फर्स्ट सेशन, 10th सेशन और 11th सेशन कब हुआ था, डेट आपसे पूछा जाता है, ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल सेशन कितना हुआ था, 11 सेशन हुआ था और ये सेशन करने में कितना दिन लगा था, टोटल 165 डेज। टोटल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनवा करने टोटल किमान दिन লাগিছিল, 2 year 11 month इस 17 और 18 ইয়াতে মই অবলিক এই কারণে দিয়া হৈছে বিকজ মই নোট বনোৱাৰ সময়ত মই যিকেইটা কিতাপ মই ৰেফাৰ কৰিছো, লুসেন্ট আপোনাৰ এই দিশা পাব্লিকেশনৰ এটা কিতাপ, কিৰণ পাব্লিকেশনৰ কিতাপ, এই 17 হয় কেতিয়াবা 18 হয় কেতিয়াবা। ठीक है, लुसेंट में शायद 17 डेज दिया है, मनोहर पांडे में आपको 18 डेज दिया है शायद। ठीक है, तो ये 17-18 में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इतना श्योर मान के चलिए एग्जाम में कभी भी आपको ऐसा नहीं देगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी, ऐसा ऑप्शन ए 2 year 11 month 17 डेज, ऑप्शन बी 2 year 18 डेज, कभी नहीं देगा, उसमें तो गैप रहेगा। 17-18 में जो आपको मिलेगा उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, कितना खर्चा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कितना खर्चा हुआ था, 64 लाख, टोटल 64 लाख खर्चा हुआ था टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में टोटल 64 लाख का खर्चा हुआ था। मूविंग फॉरवर्ड, इंटरिम प्रेसिडेंट এই যে বনোৱা যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি যে বনোৱা হল, এটা আমাৰ লাহে লাহে এটা গভৰ্ণমেণ্ট হল, ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা বেলেগ বেলেগ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এটা বনোৱা হল, কনস্টিটিউশন যিসকলে কাম কৰিব, তাৰপিছত ড্ৰাফটিং কমিটি আহিব বেলেগ। তো इंटरिम प्रेसिडेंट था सच्चिदानंद सिन्हा। इंटरिम क्यों बोला गया है, टेम्पोररी, कितने दिन के लिए था प्रेसिडेंट हो, कौन तारीख को बना था, कौन सा तारीख को बना था, ये जो सेशन था 9 दिसंबर 1946, इस दिन का प्रेसिडेंट था सच्चिदानंद सिन्हा। पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन आता है कि पहला सेशन का पहला दिन कौन सा है, 9 दिसंबर 1946। हु वाज द प्रेसिडेंट, सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों प्रेसिडेंट था, बिकॉज ही वाज द सीनियर मोस्ट पर्सन, सबसे ज्यादा बूढ़ा आदमी वही था। कौन सा देश से ये इंस्पायर है, कौन सा देश में ये किया जाता है कि बूढ़ा आदमी सीनियर आदमी को अच्छा पोजीशन दिया जाता है, कौन सा देश से फॉलो किया गया है ये, फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से ये आपको दिया, उसमें से ये चीज फॉलो किया गया है। तो सबसे जो सीनियर मोस्ट आदमी है उसको आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको पोजीशन दिया गया था। तो 9 दिसंबर से लेकर 2 दिन सच्चिदानंद सिन्हा आपका इंटरिम प्रेसिडेंट था, बाद में 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया फुल टाइम प्रेसिडेंट। अभी मेरा एक सवाल है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बोल लो। Who was the president of Constituent Assembly? राजेंद्र प्रसाद। अरे लिखा है तो हीरो, यही तो राजेंद्र प्रसाद। Who was the president of Constituent Assembly? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ये सवाल में रहते हुए क्यों पूछ रहा हूं, अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम आए Who was the president of Constituent Assembly, ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, जी.वी. मावलंकर, एच.सी. मुखर्जी, एच.बी. अयंगर, लास्ट में है बोथ ए एंड बी। राजेंद्र प्रसाद, जी.वी. मावलंकर, एच.सी. मुखर्जी, अयंगर, लास्ट में है बोथ ए एंड बी। प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? अगर
नॉर्मली अगर समझा जाए या सीखा जाए या याद रखा जाए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आंसर शुड बी राजेंद्र प्रसाद। बट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का दो ब्रांच था। एक ब्रांच था जिसको काम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन लेके बात होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेके बात होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये सब लेके बात होगा। तब आपका प्रेसिडेंट जो होता था उस सभा का राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब लॉ मेकिंग का बात होगा, बिकॉज आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपका देश का पहला पार्लियामेंट कौन सा था, फर्स्ट पार्लियामेंट, इंडिया का पहला पार्लियामेंट कौन सा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिया का पहला पार्लियामेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पार्लियामेंट का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। जब लॉ बनाने का बात होता, जब जिस सभा में लॉ बनाने का बात होगा, उस टाइम प्रेसिडेंट का पोस्ट आपका था जी.भी. मावलंकर। उस टाइम प्रेसिडेंट हुआ करते थे जी.भी. मावलंकर, जी.भी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। उनका और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी.भी. मावलंकर को लेके, क्या होता है वो? वेरी गुड, फर्स्ट तो ठीक बोले थे, बाद में गलत बोल दिए। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जी.भी. मावलंकर। और ही यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब लॉ मेकिंग का बात चलता था। क्लियर है? ओके। अभी राजेंद्र प्रसाद आपको पता होता, सचिन सिन्हा पता हो, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एग्जाम में आता है, वाइस प्रेसिडेंट H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णमाचारी। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णमाचारी। एक चीज देखिएगा गौर से, दिस इज V.T. पूरा नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन है V.T. आगे चल के आपको एक T.T. मिलेगा, दोनों अलग अलग आदमी है। V.T. को T.T. मत कर दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का था V.T. कृष्णमाचारी और H.C. मुखर्जी। फर्स्ट पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन कौन था? भीमराव अंबेडकर। बहुत बढ़िया। ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी टोटल कितना दिन लिया ड्राफ्ट देने के लिए? 141 डेज। टोटल 141 डेज। तो इसलिए बरो ड्राफ्टिंग कमिटी कंप्लीट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट दिया काउने। फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनल ड्राफ्ट कुने प्रेजेंट करिছিল? भीमराव अंबेडकर बिफोर द पब्लिक ऑन वेरी इंपॉर्टेंट डेट 4th नवंबर 1948। 4th नवंबर 1948। याद कीजिए, ये आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस है, ठीक है। ऑलरेडी इंडिपेंडेंस मिला हम लोग को, 1.5 साल हो गया। 1947 15 अगस्त इंडिपेंडेंस मिला। 4th नवंबर 1948 आपको भीमराव अंबेडकर पब्लिक के सामने पहला ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला जगह बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस टाइम भीमराव अंबेडकर, अभी तो देखिए कोई नेता नहीं होगा उसको क्यों असेंबली में रखा जाए, वो भी कुछ नेता था। कौन सा प्रोविंस से आया था? बंगाल प्रोविंस से आया था। आगे चलकर हम लोग देखेंगे भीमराव अंबेडकर अलग जगह से भी वोट के लिए इलेक्शन खेले थे, ठीक है। हु यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ सीए व्हेन दे यूज्ड टू सिट टू मेक लॉस? जब लॉ बनाने के लिए बैठे थे प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था? जी.भी. मावलंकर, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो फाइनल को कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, टोटल कितना मेंबर था? 7 मेंबर था, 7 मेंबर्स। चेयरमैन भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर वाज आल्सो नोन एज मॉडर्न मनु, मॉडर्न मैन या चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मानु माने की मानु माने मैन ना, किंतु मानु माने इन संस्कृत इट इज कॉल्ड अ ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। तो मॉडर्न मनु या मॉडर्न मैन, इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है भीमराव अंबेडकर को। और बाकी जो मेंबर थे ये थे, ये 6 और एक 7। अब इसमें एक चीज देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ठीक थे, गोपाला स्वामी आयंगर लास्ट तक थे, मोहम्मद सदुल्ला लास्ट तक थे। लेकिन दिक्कत क्या था? वीएल मित्तर ये थे स्टार्टिंग में, बाद में इनका हेल्थ इश्यू के चलते इनको रिप्लेस किया गया बाई माधव राव। क्वेश्चन में आया है आपका ये चीज, मैं इसलिए मैं पहले वीएल मित्तर देके छोड़ दिया था, लेकिन बाद में मैं देखा आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, वीएल मित्तर था ही नहीं उसमें। ये चारों में से कौन मेंबर है? उसमें आपका एन माधवराव का ऑप्शन में नाम था, तो माधवराव वीएल मित्तर के जगह बाद में आए थे ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, उनको रिप्लेस। सिमिलरली डीपी खैतान, याद कीजिए, वाइस प्रेसिडेंट वीटी कृष्णमाचारी, डीपी खैतान टीटी कृष्णमाचारी रिप्लेस किया। टीटी कृष्णमाचारी जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था। क्लियर? लास्ट के एम मुंशी,
ठीक है, बोरिंग ज्यादा लग रहा है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड, ये तो मेरा बोलने का जरूरत नहीं, आप लोग खुद जानते हैं एग्जाम में एक बार दो बार नहीं, बाप रे बाप बहुत बार आया होगा ये चीज और ये चीज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आपका फोर्स में लाया गया था। एडॉप्ट मतलब हम लोग इसको मान लिए। देखिए 26 नवंबर 1949 इस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था। तब जवाहरलाल नेहरू बोले, आप लोग याद होगा 1930 लाहौर सेशन, आईएनसी का लाहौर सेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1930 जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें 26 जनवरी डेट उसमें था जिसमें ट्राई कलर फ्लैग को अनफॉल किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू बोले क्योंकि हम लोग, और उसको हम लोग फर्स्ट इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं 1930 26 जनवरी, जिस दिन ट्राई कलर फ्लैग को अनफॉल किया गया था फर्स्ट टाइम। तो लेकिन फ्लैग आज हम लोग जो फ्लैग हम लोग का है तब देखने में ऐसा नहीं था, तब थोड़ा अलग था, वो जो बीच का जो स्पोक है थोड़ा अलग टाइप का दिखता था, लेकिन जो भी है उस टाइम किया गया था। तो जब 26 नवंबर 1949 को रेडी था, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बोला कि देखिए हम लोग ये काम करेंगे क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंस हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन हम लोग को जो 26 जनवरी वाला डेट था उसको हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए इसको हम लोग फोर्स में लाएंगे 26 जनवरी 1950, ये है आपका 26 जनवरी। क्लियर? अभी देखिए इंटरिम गवर्नमेंट आपका बना था कब? 22 सितंबर 1946। आपका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया कब? 1950। बीच में लगभग 3.5 साल का गैप है। ये 3.5 साल में क्या क्या चल रहा था आपका कुछ अभी तो ऑब्वियसली अगर 3.5 साल अगर देश को ऐसे ही छोड़ा जाएगा बिना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो करना है करो, 3.5 साल बाद देखा जाएगा, तब तो देश तो खत्म। इसीलिए कुछ चीज पे कंट्रोल था, जैसे कि सिटीजनशिप, जैसे कि इलेक्शन, जैसे कि प्रोविजनल पार्लियामेंट। सिटीजनशिप का मतलब कोई भी बाहर का आके बोलेगा कि मैं इंडियन हूं, नहीं होगा। सिटीजनशिप का कुछ डेफिनेट रूल दिया गया था जो फॉलो करना पड़ेगा टू गेट द सिटीजनशिप इंडिया। सिमिलरली इलेक्शन एक कायदे से किया जाएगा। इलेक्शन ऐसा नहीं होगा कि वो 3.5 साल हम लोग छोड़ देंगे तो कोई भी उठ के बोलेगा मैं इसका मिनिस्टर हूं। तो उसका इलेक्शन भी कंट्रोल में रखा गया था। और प्रोविजनल पार्लियामेंट का जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर था और कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का काम था वो चल रहा था। ठीक है, उसके बाकी सब की चीज आपके इफेक्ट में आया फ्रॉम 26 जनवरी 1950। लास्ट एक स्लाइड है, हाँ ये लास्ट स्लाइड है। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, যেতিয়া कॉन्स्टिट्यूशन बनवा হৈছিল এটা নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায়, তেতিয়া আৰ্টিকেল কেইটা আছিল? আৰ্টিকেল আছিল 395, শিডিউল আছিল 8টা আৰু পার্ট আছিল 22। আর্টিকেল আৰু পার্টৰ মাজত কি ডিফারেন্স? আর্টিকেল মানে चैप्टर और लेसन आलदा आलदा जिनिस। इसको बेसिकली ये आपका होता है यूनिट और ये आपका होता है चैप्टर। मतलब जैसे कि हम लोग जब मैथ्स किए थे तो मैं क्या बोला था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक यूनिट है, उस यूनिट में चैप्टर है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक यूनिट है, उसके अंदर आएगा आपका पार्टनरशिप, आपका एज। तो यूनिट बड़ा होता है, उसके अंदर छोटा छोटा चैप्टर होता है। तो 22 पार्ट, 395 आर्टिकल, शेड्यूल के बारे में बाद में बोलेंगे, और एक प्रियम्बल। प्रियम्बल कहां से आया था? यूएसए से आया था। ठीक है, आर्टिकल आज के दिन में कितना आर्टिकल है? 448। आज के दिन में शेड्यूल कितना है? 12, और पार्ट कितना है? 25 आज के दिन में, प्रेजेंट टाइम। अभी प्रियम्बल आया था यूएसए से। प्रियम्बल यूएसए से आने से पहले भी दूसरा एक जगह से इंस्पायर था, उसका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू दिए थे उसका। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपके सामने है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओआर बोला जाता है। ओआर कब दिया था, क्यों दिया था, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इसका क्या महात्मा गांधी मेंबर था? था तो इतना प्रोमिनेंट आदमी नहीं था। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सीए। थैंक यू, जय हिंद।